માઇક્રોસોફ્ટના કો-ફાઉન્ડર બિલ ગેટ્સ અને વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની મુલાકાત ચર્ચાનો વિષય બની હતી. સાથે જ બિલ ગેટ્સે નરેન્દ્ર મોદીનો ઇન્ટરવ્યુ પણ લીધો હતો. આવો જાણીએ વિગતે કે શું ચર્ચાઓ થઈ હતી. નમસ્કાર, હું છું ઈમાની, આપ જોઈ રહ્યા છો ન્યૂ ગુજરાતી ન્યૂઝ. હાલમાં જ માઇક્રોસોફ્ટના કો-ફાઉન્ડર બિલ ગેટ્સે પીએમ નરેન્દ્ર મોદીનો ઇન્ટરવ્યુ લીધો હતો. આ દરમિયાન પીએમ મોદીએ દેશના વૈજ્ઞાનિક, સ્વાસ્થ્ય અને અન્ય મુદ્દાઓ પર પણ ચર્ચા કરી હતી. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ટ્વીટ દ્વારા જાણકારી આપી હતી અને તેમણે જણાવ્યું હતું કે આ એપિસોડ ચૂકશો નહીં. આજે સવારે 9 કલાકે બિલ ગેટ્સ સાથેની તેમની વિજ્ઞાન, આરોગ્ય ક્ષેત્ર, આબોહવા સહિતના અનેક મુદ્દાઓ પરની વિશેષ ચર્ચા પ્રસારિત થઈ હતી. પીએમ મોદી અને બિલ ગેટ્સ વચ્ચેની ખાસ વાતચીતની થીમ ફ્રોમ એઆઈ થી ડિજિટલ પેમેન્ટ સુધીની રાખવામાં આવી હતી. ટીઝરમાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી બિલ ગેટ્સ સાથે આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ, એઆઈ, ડિજિટલ રિવોલ્યુશન, હેલ્થકેર, એજ્યુકેશન, એગ્રીકલ્ચર, વુમન પાવર, ક્લાઇમેટ ચેન્જ અને ગવર્નન્સ સહિતના મુદ્દાઓ પર ચર્ચા કરતા જોવા મળે છે. પીએમએ બિલ ગેટ્સને નમો એપના ફોટો બૂથ ફીચર વિશે પણ જણાવ્યું હતું, જેને જોઈને બિલ ગેટ્સ આશ્ચર્યચકિત થયા હતા. ઇન્ટરવ્યુ દરમિયાન બિલ ગેટ્સે પીએમ મોદીને જણાવ્યું હતું કે ટેકનોલોજીના ક્ષેત્રમાં ભારતે બતાવેલો રસ્તો દરેક માટે હોવો જોઈએ. તેના પર પીએમ મોદીએ મહિલાઓ માટે શરૂ કરવામાં આવેલી ડ્રોન દીદી યોજના વિશે વાત કરી હતી. આવો જાણીએ. मैंने एक कार्यक्रम लिया है नमो ड्रोन दीदी। इसके पीछे मेरे दो लक्ष्य हैं। एक तो मैं भारत के गांवों में 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाना चाहता हूँ, और वो भी एक गरीब परिवार से। तो मैं एक साइकोलॉजिकल चेंज करना चाहता हूँ। ये छोटी छोटी चीजें नहीं, बड़ी चीजें करनी है। दूसरा, गांव में महिलाएं मतलब यही काम करेगी, भैंस को चराएगी, गाय को चराएगी, दूध दोहेगी, नहीं। मैं उसके हाथ में टेक्नोलॉजी देना चाहता हूँ। मैं साइकोलॉजिकल चेंज लाना चाहता हूँ। गांव के सब लोगों को लगना चाहिए कि ये हमारे गांव को बदल रही है। एग्रीकल्चर को मैं आधुनिक बनाना, वैज्ञानिक बनाना, ये जरूरत मैं देखता हूँ, और उसी लिए मैंने ड्रोन दीदी का, और बहुत सक्सेसफुल चल रहा है। मैं ड्रोन दीदी से इन दिनों बातें करता हूँ, उनको इतनी खुशी है। वो कहते हैं हमको साइकिल चलाना नहीं आता था, आज हम पायलट बन गए, हम ड्रोन चला रहे हैं। सोचने का तरीका बदल गया है। સાથે જ પીએમ મોદી અને બિલ ગેટ્સે 2023માં G20 સમિટ વિશે પણ ચર્ચાઓ કરી હતી. G20 की पहले हमारी काफ़ी बातें हुई थी, और आपने देखा होगा कि G20 एक प्रकार से काफ़ी दाएं बाएं चल रहा था। अब पूरी तरह उसका जिस हेतु से G20 का जन्म हुआ, उस पर हम एक मेन स्ट्रीम में ले पाए हैं, और शायद आप भी अनुभव करते होंगे। Well, the G20 is way more inclusive, and so it was fantastic to see that India, in hosting it, really raised things like digital innovation and how this South-South collaboration can be far more than just the dialogue with the North. It can actually be a system that improves health. And you know, our foundation is so excited about the positive results that you've achieved here in India that we'll be a partner in trying to take that into many other countries. બિલ ગેટ્સે પીએમ મોદીને પર્યાવરણ બાબતે પ્રશ્ન પૂછતા એમને શું ઉત્તર આપવામાં આવ્યો હતો, આવો જાણીએ. In one of the themes I think India brings to technology is that it should be available for everyone, actually lifting up those who need it the most. जब मैं दुनिया में डिजिटल डिवाइड की बात सुनता था, मैं कहता मेरे देश में मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा कि डिजिटल डिवाइड हो। और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये अपने आप में बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। आज मेरे यहाँ गांवों तक मैं ये डिजिटल फैसिलिटी पहुंचाना चाहता हूँ। तो मुझे लगता है वो बहुत बड़ा टारगेट ग्रुप है। महिलाएं तुरंत नई चीज़ों को स्वीकार करती है, ये मेरा अनुभव है मेरे देश में। उनके अनुकूल कौन सी चीज़ें मैं टेक्नोलॉजी में ले जाऊंगा, तो वो एकदम से एक्सेप्टेबिलिटी बनती है। मैंने एक कार्यक्रम लिया है नमो ड्रोन दीदी। इसके पीछे मेरे दो लक्ष्य हैं। एक तो मैं भारत के गांवों में 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाना चाहता हूँ, और वो भी एक गरीब परिवार से। तो मैं एक साइकोलॉजिकल चेंज करना चाहता हूँ। ये छोटी छोटी चीज़ें नहीं, बड़ी चीज़ें करनी है। दूसरा, गांव में महिलाएं मतलब यही काम करेगी, भैंस को चराएगी, गाय को चराएगी, दूध दोहेगी, नहीं। मैं उसके हाथ में टेक्नोलॉजी देना चाहता हूँ। मैं साइकोलॉजिकल चेंज लाना चाहता हूँ।
गांव के सब लोगों को लगना चाहिए कि ये हमारे गांव को बदल रही है। एग्रीकल्चर को मैं आधुनिक बनाना, वैज्ञानिक बनाना, ये जरूरत मैं देखता हूँ और उसी लिए मैंने ड्रोन दीदी का, और बहुत सक्सेसफुल चला है। मैं ड्रोन दीदी से इन दिनों बातें करता हूँ, उनको इतनी खुशी है, वो कहते हैं हमको साइकिल चलाना नहीं आता था, आज हम पायलट बन गए, हम ड्रोन चला रहे हैं। सोचने का तरीका बदल गया है। વધુમાં પીએમ મોદીએ એઆઈ વિશે ચર્ચા કરતા જણાવ્યું હતું કે खुशी, आई एम यूजिंग माई नमो ऐप और मैं एआई का बड़ा उपयोग करता हूँ और मेरे लिए पूरे देश में बहुत काम आता है। ये मेरा फोटो बूथ है। अब आप सेल्फी ले लीजिए इस पर, टेक द सेल्फी। Okay. Yeah. Wow. So you can see. Wow. Not only this, since last 20 years, मेरे साथ आपके जितने भी फोटो होंगे, जितने भी मेरी फोटो होंगे 20 साल की, सारे इस पर आ जाएंगे। कभी और किसी पब्लिक फंक्शन में मान लीजिए आपका एक 1/10 पार्ट दिख रहा है, तो वो फोटो में भी अगर मैं दिखता हूँ और आपका 1/10 भी दिखता है, वो भी उसको वो रिकग्नाइज करके ले आता है। तो आज टेक्नोलॉजी का कैसे उपयोग हो सकता है, और मैं मानता हूँ कि इस प्रकार के प्रयोग हमें वैल्यू एडिशन करते हैं। अब पहले क्या होता था, मैं कहीं जाता था, कोई फोटो मांगता था, देते थे। आज मैं कहता हूँ भाई तुम एआई पर जाओ, मेरे नमो ऐप पर जाओ, फोटो बूथ में जाओ, खुद की सेल्फी ले लो, आपको आपके साथ मेरा जितना भी फोटो होगा कि कोने में आप खड़े होंगे तो भी मिल जाएगा। तो हमने थोड़ा रोजमर्रा की जिंदगी में लोगों की मदद करने के लिए उपयोग करना चाहिए। तो मेरी कोशिश होती है कि पहले उसको कंफर्ट लेवल देना, उसको लगना चाहिए हाँ यार ये तो मेरे काम का है। जब काम में होता है तो फिर उसको इनोवेशन करता है, वो नई चीजें जोड़ देता है। આવી જ લેટેસ્ટ અને અપડેટેડ ન્યૂઝ માટે જોડાયેલા રહો ન્યૂ ગુજરાતી ન્યૂઝ પર।